واسمعي يا أمتي ما عدت أصبر أن يموت بياني شعري يراودني لأقذف جمرة مما حوى صدري من النيران ما عاد يحويني سكوتي والبكاء أنا لست مجبولا على الخذلان أنا في يمين الشمس تشرق عزة. آپ سب جانتے ہیں کہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل قائم ہوا، لیکن جب اس کے قیام کا منصوبہ پیش کیا جا رہا تھا اب اس کے بارے میں اجتہاد کر کے ہم اس کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ ہم اس کی مزید اپلیکیشن کو سوچیں گے کہ اس کی اپلیکیشن فردر کیا ہو سکتی ہیں، لیکن اب اس کے بارے میں بات طے ہو چکی ہے. على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. دنیا کو ایک عدل کا نظام دینے کے لیے اللہ نے جہاد کو حلال کیا. جہاد کی حلت کی یقیناً اور بھی اسباب ہیں. قرآن حکیم سے دوسرا مقام ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 80. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر اور دجال کا مقابلہ کرے گا. یہ دو لشکر ہیں اور یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہی لشکر جو ہے اس ہندوستان کو فتح. یہاں سال بھر میں جو جرائم ہوتے ہیں سعودی عرب کے اندر وہ آپ کی کسی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ کے اندر ایک دن کے اندر ہو جاتے ہیں. دس از دی آؤٹ پٹ ان سزاؤں کی. لیکن انہوں نے مرکزی حکومت اپنے ہاں رکھی اور اس قسم کا حسن سلوک دوسروں کے ساتھ کیا کہ محمد بن قاسم کے بعد ہندوؤں نے اپنے کچھ آگے بڑھا، لیکن یہاں جو سسٹم ہے وہ بار بار ٹوٹتا رہا. پینڈولم کی طرح کبھی ایک ایکسٹریم ہے ماشاء اللہ، کبھی جمہوریت ہے، اور جو ایسی لیڈرشپ جن کا بے داغ کردار ہو اور وہ امریکنز کے ساتھ سفارتکاری کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہمارا اسلام کا یہ مذہب اس لیے پاکستان کا مقصد جو اس وقت تھا آج بھی ہے، جس مقصد پر آج ہماری قوم قائم ہے، باوجود چائنا کی جاسوسی والی بات تو نہیں ہے، کیونکہ جاسوسی کے لیے آپ کو ایمبیسی میں نہیں رکھنے ہوتے. کئی اور طریقے ہیں آج کل جاسوسی کرنے کے لیے، لیکن بڑی آرگنائزیشن جو ہوتی ہے سسٹم جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. لیکن فوراً سیکرٹری جنرل نیٹو نے اس کے اوپر کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، اسلام ابھی تک میدان میں ہے اور وہ ایک متبادل نظام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوس به الانبياء. عزیزان محترم، آج آذان ٹی وی چینل کے ذریعے سے جس موضوع پر میں آپ سے بات کروں گا وہ ہے دین اور سیاست. چونکہ عام ذہن یہ بن چکا ہے اور مشہور یہی ہے کہ دین ایک الگ چیز ہے اور سیاست ایک الگ چیز ہے. جیسے کہ یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں مشہور و معروف ہے کہ دنیا داری اور دینداری، جبکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام انبیاء کی شریعتوں میں دینداری اور دنیا داری کوئی الگ الگ چیز نہیں، بلکہ اگر تجارت کی جائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور افعال کے مطابق، شریعت کے مطابق، تو اس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین. ایک سچا تاجر جو ہے اس کا حشر انبیاء اور اس کے صادقین کے ساتھ اور دیندار لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور اگر
दीनी इबादत किए जाएं, लेकिन वो दुनिया के लिए हो सिर्फ, तो लाजिमी बात है कि वो अजाब का मुस्तहिक ठहरेगा। इसी तरह सियासत ये ऐनी दीन है। जैसे मैंने आपके सामने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एक हिस्सा पढ़कर सुनाया, और वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कानत बनु इसराइल तसूसु बिहिल अंबिया, कि बनी इसराइल की जो सियासत करते थे, जो क़ियादत करते थे, जो खिलाफत करते थे, वो अंबिया करते थे। तसूसु बिहिल अंबिया, उनकी सियासत जो थी वो अंबिया की थी, और वही उनके। अब सियासत कहते किसको हैं? सबसे पहले तो हम ये जान ले और उसकी तारीफ। तो सियासत के लुग़वी माने जो अरबी में है वो है अल-क़ियामु अला शैइन बिमा युस्लिहुहु, एक ऐसी चीज पर कायम होना और एक ऐसी चीज को पकड़ लेना और एक ऐसी चीज पर अमल पैरा हो जाना कि जिसके जरिए से इस्लाह। और आम तौर पर सियासत का माना यही है कि किसी को राह दिखाना, किसी को रहनुमाई करना, तो एक अच्छाई की तरफ, एक अच्छे निज़ाम की तरफ, एक इस्लाही सिस्टम की तरफ जो रहनुमाई की जाती है, अरबी में उसी को सियासत कहा जाता है। और आप देख लें, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी वो यही थी कि अल्लाह मुझे एक ऐसी हुकूमत इनायत फरमा दे। किस लिए? कि क्या उनको दुनिया से गरज थी? नहीं, यकीनन नबी को दुनिया की कोई गरज नहीं होती। अल्लाह पाक ने उनको एक ऐसी अजीम हुकूमत इनायत फरमाई और आपने उसका निज़ाम चलाया जिन्नात पर, तमाम मखलूक़ात पर। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया बादशाह के सामने, इन्नी हफीजुन अलीम, एक तो ये है कि मुझे जो आप जिम्मेदारी देंगे खजाने की, तो मैं उसका मुहाफिज हूँगा, और अलीम माना कि मैं उसके इस्तेमाल को और उसके जो अवाक़िब है उसको मैं जानता हूँ, मैं उसको उस तरह चलाऊँगा। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सियासत मदीना मशहूर वाक़यात हैं, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया तो घर बैठे बैठे नहीं फरमाया, बल्कि आप सफ़ा की चोटी पे खड़े हो गए और आपने फरमाया, पूरी कौम को जमा किया और कौम के सामने अपनी ज़ात को रखा। एक लीडर अपनी ज़ात को रखता है कि मेरे अंदर कभी करप्शन तो नहीं है, मुझ में कोई गलती तो नहीं है, मैंने कोई चोरी तो नहीं की। तो आपने भी उम्मत से सवाल किया कि आप बताइए, लक़द, आप ये मुझे बता दीजिए कि मेरी तो जिंदगी छोटी से उम्र से लेकर छोटा मासूम बच्चा आपके सामने जवानी की उम्र तक आयु, आपने मुझ में कुछ देखा? ये एक सियासत और एक लीडर सवाल कर रहा है। पूरी कौम ने आपके हक में वोट दिया और कौम ने बैक जुबान होकर कहा, लक़द जर्रबनाका मिरारा मा वजदना फीका इल्ला सिद्क़ा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बार बार आजमाया, लड़कपन से, बचपने में, जवानी में हमने आपको आजमाया। मा वजदना फीका इल्ला सिद्क़ा, हमने आप में सच्चाई के अलावा कुछ नहीं पाया। और तमाम अंबिया ही का यही वतीरा रहा। अब मसला क्या है कि सियासत की जो मुखालिफत की जाती है और उसको दीन से जब जुदा किया जाता है, उसकी वजह और कोई नहीं, वो ये है कि हमारे मौजूदा सियासी निज़ाम को देखकर, सियासी रहनुमाओं को देखकर और सियासी कायदीन को देखकर और उनके किरदार को देखकर ज़हन बन गया कि ये है सियासत। करप्शन हो, और जिस वक्त
आवाम के सामने जाया जाता है, वोट के हुसूल के लिए झूठे वादे किए जाते हैं, झूठ बोला जाता है और नतीजतन जो उसके वजारत और हुकूमत और निज़ाम मिलता है तो वो तमाम वादे भूल जाते हैं सिवाय अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने के और लूट घसूट के और अपनी जायदादें बनाने के, और कुछ नहीं होता। तो जब ये हमारे सियासतदानों का ये अमल आ गया, ये झूठा अमल ये आ गया, तो आवाम के खुद ब खुद नफरत पैदा होगी। जब वो एक दीनदार आदमी को देखते हैं, एक आलिम दीन को देखते हैं, एक अच्छे सालेह आदमी को देखते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आवाम के सामने खड़े होने वाले को देखते हैं, स्टेज पर झूठे वादे को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ ये नहीं हो सकता। जबकि हमारे यहाँ तो सियासत मुआविया है, मारूफ है कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सियासत के आज भी नारे लगाए जाते हैं। तो इसलिए, और यही वजह है कि जब हमारे कायदीन और हमारी सियासत, एक गंदी सियासत जब सामने आती है, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, आपने फरमाया कि एक कौम पर, मेरी उम्मत पर एक ऐसा दौर आएगा कि उन पर पे दर पे अजाब होंगे, आजमाइशें होगी और लाल आंधियां और मसाइब का शिकार होंगे। और फरमाया क्यों, उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह फरमाया सादातुल कौम फासिकुहुम, उस तमाम खराबी की वजह, उस तमाम अजाब की वजह, उस मुसीबतों के पे दर पे आने की वजह, उस लाल आंधियों की आने की वजह, ये जलजले, ये तूफान, ये सैलाब, ये सारी की सारी चीजें, अमवात का बढ़ना, और ये जो गली कूचों में लोगों का मरना, मरने वाले को पता नहीं मैं किस जुर्म में मरा हूं, मारने वाला को पता नहीं कि मैं क्यों मार रहा हूं, सारी की सारी चीजें होती हैं, और बड़े बड़े इज्तिमात तबाह व बर्बाद हो जाते हैं और अमलाक ज़ाया होते हैं। सारी क्यों कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीकुल अमीन, आपने फरमाया सादातुल कौम फासिकुहुम, क्योंकि उनके कौम के जो सरबराह होंगे वो फासिक होंगे, झूठे होंगे, वो झूठ बोलेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होना चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो मैं छोड़ नहीं सकता। मैं जिना करता हूं, मैं शराबखोरी करता हूं, बहुत 2, 3, 4, 6 चीजें जो इतनी भी थी वो बताई आपको कि मुझ में ये अयूब है, और साथ में ये भी कि मैं झूठ भी बोलता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, झूठ बोलना छोड़ दो। ये नहीं फरमाया कि बैक वक्त शराब पीना छोड़ दो, जिना करना छोड़ दो, दूसरे तीसरे जो अयूब उन्होंने गिनवाए थे वो छोड़ दो, ये नहीं, आपने फरमाया झूठ बोलना छोड़ दो। और चुनांचे उसने वादा किया कि झूठ बोलना छोड़ दिया है। कुछ अरसे बाद आया, फरमाया मेरे तो तमाम के तमाम जितने जराइम थे और जितने मुझ में गुनाह थे वो सारे खत्म हो गए। क्यों? कि जब वो अगर चोरी करता, कोई सवाल करता, तुझे झूठ बोलना पड़ता, वो शराबखोरी करता, कोई उससे सवाल करता तो झूठ बोलना पड़ता, वो अगर जिनाकारी करता, सवाल करता कोई उससे, तो झूठ बोलना पड़ता। एक झूठ छोड़ने की बिना पर तमाम के तमाम जितने भी थे उनसे जो खुराफात थे वो सारे के सारे निकल गए। ये है अमल है। लेकिन जब हमारे सियासतदान ये सब, अब देख लें दीन के जो इबादत हैं, इबादत की 6 अक़साम हैं। 6 अक़साम में से जो एक किस्म है वो सियासत है, और आधे से ज्यादा दीन वो तो माशरत से ताल्लुक रखता है कि एक दूसरे के साथ रब, एक दूसरे के साथ जोड़, ये सारी की सारी चीजें हैं। अब
जो सारी जो रब्त और ये रवाबित हैं, ये सारे, उसमें जो बुनियादी चीज है वो ये सियासत की, कि आप निज़ाम हुकूमत कैसे चलाएंगे, आप किस तरह हुकूमत तक पहुंचेंगे। देखें, अगर फौज कशी के जरिए से हो तो वो तो खून खराबा है, कत्ल गारतगिरी है, तबाही है। आप देख लें कि हमारे जो पड़ोस के ममालिक हैं वहां पर जब जबरदस्ती एक ताकत और कुव्वत मुसल्लत हो रही है तो मुल्क तबाह कर दिए, शहर के शहर उजाड़ दिए, मसाजिद तबाह हो गए, मार्केटें तबाह हो गई, पूरे मुल्क खंडरात बन गए। लेकिन चूंकि मसलहत से काम नहीं लिए जा रहा तो नतीजा क्या निकला कि मुल्क और शहर तो तबाह हो गए लेकिन एक दिल को वो मुसख्खर न कर सके। और सियासत के जरिए से जब अपने आमाल और अफआल दिखाए, शराफत दिखाई, तो पूरे मुल्क भी मुसख्खर हो जाते हैं और दिल भी मुसख्खर हो जाते हैं। ये सारी चीज है। और सहाबा किराम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला का दौर देख ले, खिलाफत क्या चीज है। खिलाफत, खलीफा वो यही है कि कौम का खादिम, कौम के दरमियान रहते हुए। आपने देखा कि यानी एक नुमाइंदा आया, सफीर आया और सवाल किया कि आप लोगों का बादशाह कहां है, मलिक कहां है। तो एक खादिम और एक साहबी ने फरमाया, हमारे यहां बादशाह कोई नहीं है, मलिक वलिक कोई नहीं है, हमारे यहां एक खलीफा होता है जो कौम की खिदमत करता है और अपने मुल्क की खिदमत करता है। फरमाया मुझे उससे मिलना है। जब आया उनको दिखाया तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमीन पर, मट्टी पर एक दरख्त के साए में लेटे हुए हैं, आराम से सो रहे हैं। फरमाया वाकई ये खलीफा हो सकता है, ये हाकिम हो सकता है कि जिसने कौम को, पूरे मुल्क को अमन दिया, सुकून दिया, इसलिए अपने आराम और सुकून से लेटा हुआ है बगैर किसी खौफ और खतर के। लेकिन हमारे मलिक और हमारे बादशाहों ने मुल्क को सुकून नहीं दिया, आराम नहीं दिया, कौम को चैन नहीं दिया, सुख नहीं दिया, इंसाफ नहीं दिया। तो नतीजा ये कि वो अपने महल्लात में भी घबराए घबराए फिरते हैं और बहुत बड़ी फौज उनके तहफ़्फ़ुज़ करती है और उनकी हिफाजत करती है। ये है। और आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के को देख लें, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैंने जमीन पर अपना एक खलीफा भेजा कि जो इंसानियत का अब्बा था, दादा था। इंसानियत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में उनके जरिए से फैलाना था। तो उन्होंने कोई डंडे के जोर पे तो हुकूमत नहीं की अपनी औलाद पर। यही वो चीज है, यही वो सियासत है कि जिसने अमन कायम किया। और वाकई एक है इनफिरादी दीन और एक है इज्तिमाई दीन। इनफिरादी दीन इबादत से मुताल्लिक है। वो ये है कि नमाज पढ़ लिया आपने हज अदा कर लिया, आपने उम्रा अदा कर लिया, आपने ज़कात दे दी, ये सारी की सारी चीजें, ये इनफिरादी दीन है, ये आपके ज़ात के साथ मुताल्लिक है। और एक है इज्तिमाई दीन। इज्तिमाई दीन यही है, आप जब शहर में जाते हैं, आप अपने इलाके में निकलते हैं, आप बाजार निकलते हैं, तो आपके लोगों के साथ ताल्लुकात कायम होते हैं। और सियासत सिर्फ यानी इसका नाम नहीं कि सिर्फ के सिर्फ यानी हुकूमत ही की, बल्कि सियासत आपके घर में है, आपके अपनी फैक्ट्री में है, आपके अपने इदारे में है। जो भी इदारा है उसमें जब आप चलते हैं, उसमें आप काम करते हैं, आप अपने फैमिली के साथ होते हैं, ये सारे के सारे सियासत से मुताल्लिक है।
تو اگر خلاصہ یہ ہے کہ اگر سیاست کی جائے دین کے مطابق اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سیاست مدینہ کی خلفائے راشدین نے حکومت کی دلوں پر، اگر اس کے مطابق کی جائے حکومت اور چلا جائے تو یہ عبادت ہے اور یہ دین ہے، یہ عین شریعت ہے۔ لیکن اگر سیاست کی جائے جیسے دنیا میں یا ہمارے ہاں جو سیاست رائج ہے کہ دھوکہ، فراڈ، فریب، اقربا پروری، نا انصافی یہ ہو تو یہ اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے اور یہ اسلام دشمنی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یقیناً دین کے مطابق اور شریعت کے مطابق سیاست کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو اللہ رب العزت یہ سوچ اور یہ فہم دے کہ وہ عین دین کے مطابق سیاست کریں اور دین کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کے خدمت کریں، اور اپنے آپ کو حاکم نہ سمجھے بلکہ اپنے آپ کو قوم کا خادم سمجھے۔ جس قوم نے ان کو ووٹ دیے ہیں اور ان ووٹوں کے ذریعے سے جو امانت ہے ووٹ، آپ کی رائے ہے، یہ آپ اپنی رائے دیتے ہیں، تو اس ووٹ کی وہ قدر کرتے ہوئے اور عوام کی خدمت کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔